Hello YouTube. In this particular video, we're going to talk about PT 365 for polity, which has been released for the year 2026. All right. So we'll not just be doing the content here, but along with the content, which every topic, for example, emergency is the first topic right here, we'll be doing the previous year questions of emergency. In that case, what we'll be doing is a comprehensive study. Because see, being very honest here, Politiki PT 365 is not a current affair magazine. It's not a current affairs of the last year. It is just, I'll show it the proof also. It is just the static part along with the PYQs being reframed as current affairs. ठीक है? There is nothing else. मतलब there is hardly any substance that you'll not get in the Lakshmikant here. ठीक है? लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी मोस्ट चीज़ें 90% चीज़ें कवर रहेंगी. So we'll not dive keep repeating that mistake. We'll do it along with the PYQ. So actually we are getting some output out of it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So the first है about national emergency. ठीक है, 3 types of emergency होती है. We have the national emergency, we have the president's rule, and we have the financial emergency. If you'll see the previous question, the first is, if the president of India exercises power under Article 356, what is supposed to happen? Basically, अगर president rule लगता है तो what is going to happen in respect of a particular state? ठीक है, तो क्या state assembly automatically dissolve होती है? Okay, no, it can be suspended. It is not necessarily the case. The powers of the legislature are exercisable by the parliament. Yes, definitely yes. This is the answer. Article 19 is suspended. No, it is not the provision in the president's rule, and the president can make laws relating to the states. No, it is the parliament ke paas jati power. So B is the answer. Now, apparently, this is a repeated question. See, if you'll see here, what are not necessarily the consequences of president's rule in a state? You'll see that not a necessary consequence. Dissolution of state legislative assembly is not a necessary consequence. यहीं पर वही क्वेश्चन में वापस यही स्टेटमेंट यूज करी गई थी. ठीक है, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस, एंड अगेन थर्ड इज नॉट अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस. सो योर आंसर विल बी 1 and 3, not necessary consequence. So these are the two direct questions that have come. And thirdly, if you see statement, just one out of 3 statements, only one statement is related to emergency. You'll see that emergency provisions are given in part 18. ठीक है, part 18 of the constitution, it is written here, this which is right. So यहाँ पर the statement is included in the answer. And लोकसभा की powers, exclusive powers के बारे में बात करी गई थी. So no, it is not just the Lok Sabha, it is Lok Sabha plus Rajya Sabha which ratifies the declaration of emergency. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, 50 years हो गए इमरजेंसी को. लास्ट 1975 में लगी थी. 1975 में क्यों लगी थी? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण लगाई गई थी. वे व्हाट इज द सोर्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. व्हाट इज द सोर्स बिहाइंड द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी? इट इज द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस दिए गए हैं? इट इज इन आर्टिकल 352 से 360, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज द पीवाईक्यू दैट वी जस्ट सॉ. अगर आप यहाँ पर देखेंगे 352 फॉर नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पर एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है. 356 और 365 के अंडर आपकी प्रेसिडेंट्स रूल लगता है. आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360 है. ठीक है. Who proclaims? The president proclaims. Now earlier it was कि written declaration was not needed, but जब 1975 में internal डिबेटेबल सर्कमस्टांसेस में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो रिटन डिसीजन आपका मैंडेटरी कर दिया गया था यूनियन कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का नहीं, यूनियन कैबिनेट का. ठीक है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 1 month. जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, पीवाईक्यू देखा कि भाई लोकसभा हैज द एक्सक्लूसिव पावर. नो, लोकसभा डज नॉट हैव द एक्सक्लूसिव पावर. इट इज बोथ द हाउसेज विच विल राटिफाई विद इन 1 month. पहले ये टाइम लिमिट ज्यादा थी, इसको 44th अमेंडमेंट से कम करा गया. ठीक है, वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली. 6 month पे आपको, हर 6 month में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, है ना. ओके, नाउ मूविंग अहेड, दिस टॉपिक इज इतना ही करना है आपको. यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि शाह कमीशन इज रिलेटेड टू द प्रोब. जो इंक्वायरी हुई थी अबाउट द एक्सेसेस एंड अब्यूजेस अंडर द इमरजेंसी, दैट वाज रिलेटेड टू शाह कमीशन. ठीक है, और 44th में वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स एज पर दिस इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंसर्न. वी हैव मेड इट डिफिकल्ट टू इन्फोर्स इमरजेंसी एंड डिफिकल्ट टू कीप इट इन प्लेस रादर देन ईजिंग इट आउट. सो ये आपको याद रखना है.
So there were things which were happening during the emergency जो आपकी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने करी थी, which was one of which was the 39th amendment, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction आपके पीएम आपके स्पीकर के इलेक्शन से हटाया गया था, but it was changed afterwards. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर असेंट टू स्टेट बिल्स. ठीक है, स्टेट बिल्स के जो पासिंग का प्रोसेस है, it has been in news a lot because there have been two things. One is the 16th presidential reference case under Article 143 जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में गया था अबाउट टेकिंग देयर व्यू ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसका मेन रीजन एक्चुअली ये केस था. ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जजमेंट. अब इसमें क्या हुआ था, पहले हम इसको बात करते हैं फिर हम ऊपर जाएंगे. स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में बोला गया था कि भाई द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पॉकेट वीटो. ठीक है, एक्सरसाइज पॉकेट वीटो. आप ना ऐसे पेंडिंग नहीं रख सकते कुछ इन एक्शन की, हाँ बिल पेंडिंग पड़ा है, वी आर नॉट साइनिंग इट. सो दे सेड इनएक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड यू कैन चैलेंज इट बाय द रिट ऑफ मेडम्बस. मेडम्बस मींस वी कमांड. तो बेसिकली आप यहाँ पर पॉकेट वीटो पावर उनकी छीन रहे हो. बट जबकि यहाँ पर लिखा था कि भाई मैडम्स कैन नॉट बी इन्फोर्ड कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नर्स. सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस देयर आर अदर रीजंस बिहाइंड दिस आल्सो, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट को. तो जहाँ पर जिसका आउटपुट ये निकला था कि भाई नहीं, ठीक है, डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं लेता है एक्शन, किसी बिल को रेटिफाई नहीं करता है, तो आप देयर इज नो टाइम लिमिट दैट यू कैन टाइम लिमिट दैट यू कैन इन्फोर्स हिम देम एंड यू विल से कि इस टाइम लिमिट में नहीं हुआ तो डीम्ड असेंट है. दिस इज नॉट, दे शुड नॉट, दे कैन नॉट सिट ऑन बिल्स इंडेफिनेटली. बट यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सप्लिसिटली यहाँ पर टाइम लिमिट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है. कैन द सुप्रीम कोर्ट और द अदर कोर्ट्स डू जुडिशियल रिव्यू ऑफ दैट? यस दे कैन, बट ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड इंटेंट एंड ऑल. ठीक है, ठीक. Now if you see this particular question, दिस इज फ्रॉम अ PYQ. बेसिकली आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट के थोड़ा डिस्टिंक्शन जो है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का डिस्टिंक्शन पूछा जाता है, वैसे ही गवर्नर और प्रेसिडेंट का भी डिस्टिंक्शन काफ़ी पूछा जाता है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द गवर्नर हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एंड सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑल्सो. ठीक है, वेर इज द स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के ऐसे डिस्क्रिशन हैज नॉट बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ठीक है, certain spheres wherein the president is supposed to act in his own discretion is not present. All right. तो जो प्रोविजंस ऑफ रिगार्डिंग द बिल्स हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर कैन पास, गवर्नर कैन विथ होल्ड द असेंट, कैन सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट. रिकंसिडरेशन पे जाता है, द हाउस विल पास अगेन. अगर वापस जाता है गवर्नर के पास तो ही हैज टू एक्सेप्ट इट. बट इफ ही सेंड्स इट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कैन ग्रांट, विथ होल्ड, सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, एंड रिकंसिडरेशन के बाद वापस प्रेसिडेंट के पास अगर आएगा तो ही इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट. ठीक है, तो अनलाइक द गवर्नर, the president is not obligated to give assent to the reconsideration of bills. Okay. Moving forward. Okay. This is a PYQ if you'll see here. That the governor is not answerable to any court for the exercise of performance of powers duty of his office. So basically, the governor cannot be asked in question in any court because of whatever he has done in his office. And again, there is absolute criminal immunity while he is in office. So here aapka PYQ, that he is not answerable. Yes, and he has absolute criminal immunity. Okay. चलिए, let's see important topic, office of vice president, because our new vice president CP Radhakrishnan sir has been elected as the 15th vice president of India. Now this thing, although मैंने highlight करा है, but not really important कि 20 proposals 20 seconds चाहिए. Not, क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो आपके नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउसेस के जो रहते हैं, दे पार्टिसिपेट. ठीक है, एंड उन्हें स्पेशल पेन दिए जाते हैं. ठीक है, स्पेशल पेन दिए जाते हैं, जो आपका फिर वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, इसके थ्रू होती है. सो हु इज द ऑब्जर्वर इन केस ऑफ ईसीआई कंडक्ट करा रहा है, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा इज द ऑब्जर्वर. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल. मतलब ऐसा नहीं है कि योर पार्टी विल डिक्टेट हु विल वोट टू. यू कैन मेंटेन योर सीक्रेसी ऑफ वोट, and anti-defection laws are not applicable. You have to use the pen that the ECI provides. Otherwise, there is a case कि जब कोई pressure बना के आपको already pen लिख के भेज दिया हो, whatever the case can be. So these things are important to note.
एंड अगर ब्राइबरी और अंडी इन्फ्लुएंस होता है तो यू कैन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑन दिस सिनेरियो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, देयर इज वन इशू दैट आई हैव seen in this year's PT365 of polity कि sort of intellectual depth, human intellectual depth is missing। यहाँ पर बोला गया है कि यस 39th अमेंडमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जो रिस्ट्रिक्शन था विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन पिटिशंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, वो हटा दिया था, ठीक है, विच इज राइट, दिस इज अ PYQ ओनली। बट आप ये तो क्लैरिफाई करिए न्यू स्टूडेंट्स को कि भाई इट वाज स्टक डाउन आफ्टरवर्ड्स, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में इट वाज स्टक डाउन, ठीक है। ऐसी तीन चार जगह आई हैव सीन दीज मिस्टेक्स। आई फील या तो ये दे आर यूजिंग AI थोड़ा बहुत, या फिर वट एवर इज द केस, रिव्यू प्रॉपरली नहीं हुआ है, बट यू नीड टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको बताया ना कि अगर एक नया स्टूडेंट है, नूब स्टूडेंट है, वो देखेगा सोर्स, अच्छा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, वो आगे बढ़ जाएगा। भाई ये बताइए कि प्रॉपर सोर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इमरजेंसी का सोर्स जर्मनी है। आई विल शो दीज प्रॉब्लम्स अहेड ऑल्सो, कुछ कुछ जगह उन्होंने ये प्रॉब्लम करी है इस बार, ठीक है। इन एनी केस लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अगर हम इसकी प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members. So yes, chairman is not the member, but the deputy chairman is the member. So first statement यहाँ पर आपकी incorrect हो जाती है। If you see the second question, while the nominated member of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the vice president's election. Yes, they have the vote in the vice president's election. So answer आपको हो जाता है B. If you see the electoral college है, I have highlighted है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें बोथ द हाउसेस के मेंबर रहेंगे, और इलेक्टेड मेंबर भी हो सकते हैं और नॉमिनेट मेंबर, बोथ बोथ ऑफ देम विल वोट, ठीक है। सबकी एक ही वैल्यू रहेगी वोट की, विच इज 1, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सीक्रेट बैलेट रहेगा बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन है जो आपके स्टार्टिंग पार्ट में लक्ष्मीकांत में है, देर इज नो नीड टू वरी अबाउट देम अगेन। नाउ जो आपका रिमूवल होता है, ठीक है, सो जो आपका रिमूवल है, if you're seeing removal, the removal has been done by a Rajya Sabha resolution passed by a majority of the total member, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, टोटल मेंबर की मेजोरिटी से आपका रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा में, और लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करेगी। दैट इज द वे ऑफ removal of the chairman of the Rajya Sabha, also the vice president of the country. If you go and you see the speaker of the Lok Sabha, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है, कुछ नहीं है ये, दिस इज जस्ट स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक को प्रेजेंट करने का तरीका है, सो दैट दे कैन क्लेम दैट हमारे क्वेश्चंस आए हैं, हमारे पीटी से क्वेश्चंस आते हैं हर साल। सो ये देखिए, rules of procedure of conduct of business in Lok Sabha, they said कि you can have a panel of chairpersons, 10 MP के panels of chairpersons बना सकते हो, and these people will act as speaker and deputy, as they can preside over the house in the absence of speaker and deputy speaker, ठीक है भाई। But if the offices of the speaker and the deputy speaker are vacant, these people will not preside over the house, it will be somebody who is recommended by the president, ठीक है। चलिए आते हैं आर्टिकल 93 says that there will be two members, speaker and the deputy speaker, they will be elected by simple majority. So you need to understand is कि हाउस में लोग जाएंगे MPs, इनमें से दो लोगों को इलेक्ट करा जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बाहर के बंदे को भी आप 6 मंथ्स के लिए बना सकते हो अंटिल ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द हाउस, बट यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ऑन द डे फर्स्ट आपको मेंबर होना पड़ेगा हाउस का, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। ये दे डू नॉट वेकेट द ऑफिस इमीडिएटली बिफोर, डू नॉट वेकेट द ऑफिस व्हेन द पार्लियामेंट ends, but they stay till the next Lok Sabha does its first meeting just before that, and they're eligible for re-election, ठीक है। आपको अगर हटाना है, so you need effective majority. Effective majority is essentially majority of all the then members. So you minus the vacancies and all the then members, and 14 days का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें पार्लियामेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के, so ये अगर ये क्वेश्चन देखिए जो मैंने आपको बताया कि ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं भाई, इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, इनका रिमूवल है बेसिकली जो हमने रेजोल्यूशन देखा अभी कि इफेक्टिव रेजोल्यूशन से इनका रिमूवल होता है जो पार्लियामेंट लोकसभा खुद करती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ही शी नीड नॉट बी अ मेंबर एट द हाउस ड्यूरिंग हर इलेक्शन, नो, दे हैव टू बी द मेंबर एट डे 1। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिफरेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज
करेक्ट कि भाई जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करता है और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है, ठीक है, सो ओनली 3 इज द आंसर, राइट है। इफ इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भाई स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस इफ शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है, शैल वेकेट, यस ही शैल वेकेट। अगर आप मेंबर ही नहीं हो, मेंबर तो आपको D1 पे बनना रहता है, अगर नहीं हो तो आपको हटाना, यू आर बाय डिफॉल्ट रिमूव्ड, यस दिस इज करेक्ट। स्पीकर शैल वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी, हाँ आपका स्पीकर इमीडिएटली आपकी सीट वेकेट करेगा। नो, इट इज नॉट द केस, वी जस्ट सॉ कि नेक्स्ट असेंबली कि जस्ट पहले वेकेट करता है, तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। नाउ यू विल सी कि भाई अगर मैं पीवाईक्यूज की स्टेटमेंट देख रहा हूं तो दे हैव जस्ट रिफ्रेम्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ पीवाईक्यू एंड गिवन इट हियर इन द पीपीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द बिजनेस रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स इन लोकसभा, डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो कौन फिक्स करेगा? स्पीकर में फिक्स, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो वन इज राइट। मैंडेटरी प्रोविजन है कि इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल बी फ्रॉम द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी, ठीक है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, ये फॉलोड कन्वेंशन है कि हम अपोजिशन से लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये कट गया आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये आपका आंसर आ जाता है। It is a well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker that is the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. Now ये आपको कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, बट यू विल रियलाइज व्हेन यू आर रीडिंग द स्टेटमेंट कि यार फालतू में एक्सेसिवली यहाँ पर कॉम्प्लिकेट करा गया है, मैन्युफैक्चर्ड गया करा गया है यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट, इट इज समथिंग दैट विल नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, यू हैव योर आंसर इज ए। नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड इफ यू जस्ट सी द स्टेटमेंट कि भाई डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है। नाउ दिस पीपल नो दिस, एवरीबडी नोज दिस, बट वही जो इस बार मुझे डेप्थ मिसिंग लग रही है पीटी 365 की, स्पेशली पॉलिटी में, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आई विल शो इट टू यू, इट इज रिटन हियर ओनली। Lok Sabha chooses two of its members, Speaker and Deputy Speaker, by simple majority of the members present and voting on a date fixed by the President। अगर कोई नया एस्पिरेंट यहाँ पर पढ़ रहा है तो यस आर्टिकल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से जाओगे तो यार डेट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑल्सो, अगर आप ये रीडिंग कर रहे हो प्रॉपरली, जो कि यहाँ पर मेंशन करा है। बट आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू क्लैरिफाई विजन आईएएस कि भाई यहाँ पर एज पर रूल्स it is generally the speaker who decides the date of the election of the deputy speaker, ठीक है ना, it is a PYQ, ठीक है, it is a PYQ। So again the repeated question, the speaker shall not vacate his office immediately, no he does not immediately vacate the office, ठीक है। shall resign, कंपल्सरीली रिजाइन करना होता है क्या जब आप स्पीकर बनते हो? नहीं, जब आप स्पीकर बनते हो यू कैन रिजाइन फ्रॉम योर पार्टी, you can resign from your party and anti-defection law will not be applicable for to you, but it is not compulsory, ठीक है। shall resign लिखा हुआ है ना, shall resign is not compulsory, this is correct, this is incorrect। and you see the third statement कि भाई रिमूवल के लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, yes इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, so 1 and 3 is the answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। we have discussed all these things already above, PYQs के साथ डिस्कस कर लिया, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर कि ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, and Sachidananda Sinha was the first one to hold this office in the Central Legislative Assembly, office of Deputy Speaker, and M.A. Iyengar was the first elected Deputy Speaker post independence। This can be asked because आजकल ना एक क्वेश्चन हर साल पॉलिटी में ऐसा आता है जहाँ पर किसी का नेम यूज करा गया है, ठीक है। Anti-defection law, yes, anti-defection law, it is a question wherein it is a topic wherein a lot of questions have been asked। if you will see the questions first, these are the questions, ठीक है। इनसे हम इनको हम पहले पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ लेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, which of the following schedules of the constitution contains anti-defection law? So 10th schedule is there, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1985 से आया था, 10th शेड्यूल में हमने ऐड करा है एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकंड शेड्यूल में आपका इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में बात करी है, फिफ्थ में सीट्स एलोकेशन टू द राज्यसभा और एट्थ में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है। इफ यू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर हम बात करें, nominated legislator cannot join any political party within 6 months, नहीं भाई, within 6 months they can join, they are allowed to join within 6 months, after 6 months they cannot join, so this is incorrect। the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide the defection case, so yes there is no time limit on the presiding officer to decide the case, but abhi speaker this case of yours, speaker of the Manipur legislative assembly versus Keshav Megchandra case जो हुआ है उसमें 3 months की आपको टाइम लिमिट इम्पोज करी गई थी, बट द लॉ डज नॉट प्रोवाइड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड इज देयर, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें
If any question arises whether a member of the House of the Parliament has become subject to disqualification, the President's decision, along with the Council of Ministers' opinion, is final. No, it is the presiding officer, Speaker or the Vice President, whose decision is final. So this is incorrect. One is incorrect. There is no mention of the word political party in the Constitution of India. Yes, there is no mention. Yes, there was. There was no mention. But जब हमने ये 10th schedule और एंटी डिफेक्शन लॉ हमने लाए, तो there was a mention of political party. So this becomes incorrect. Both of them becomes incorrect. So D is the answer. यहाँ पर लिखा हुआ है. Now if we go to study the anti-defection law, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है 52nd अमेंडमेंट 10 शेड्यूल, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है. द कोर्ट कैन इंटरवीन ओनली आफ्टर द वर्डिक्ट हैज बीन गिवन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है? वॉलंटरली आप अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दो, या फिर विप के खिलाफ आप वोट कर दो, या फिर अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कर दो, और आपकी पार्टी उसे कंडोन नहीं करे 15 डेज के अंदर अंदर. अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, तो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. अगर आप नॉमिनेट हुए थे और आपने 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, सी दिस इज अ पीवाईक्यू दैट वी डिस्कस, इफ यू ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ्स, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. एक्सेप्शंस क्या है? अगर आप मर्ज कर रहे हो पार्टीज को 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स के साथ, तो देर विल बी नो प्रॉब्लम. अगर आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा मेंबर और राज्यसभा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो, तो यू इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू यू. यू कैन रीजॉइन द पार्टी आफ्टर यू आर दैट इज ओवर. Now this is again the PYQ जो हमने बात करी कि भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इट, बट इट वाज एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस्ड अंडर द 10th शेड्यूल. ओके, ये कुछ केसेस हैं बट नॉट रेलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. केशव मेघचंद्र केस, जहाँ पर 3 मंथ की हमने वर्डिक्ट लगाई है कि वो तो जोलो होलोवन वर्सेस अचेलू का केस है कि भाई स्पीकर्स डिसीजन अंडर आइडेंटिफिकेशन लॉ कैन इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है. और कर्नाटक एमएलए वाले केस में बोला था कि भाई स्पीकर से हटा के, पार्लियामेंट से पावर हटा के आप इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को दीजिए, ठीक है. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ सिटिंग लॉ मेकर की अगर हम बात करें कि कब हम एक एमएलए या फिर जो सिटिंग एमपी है उसको हटा सकते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या बोलते हैं? अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कराए, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एन कम्पिटेंट कोर्ट, इफ यू आर इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, विच इज बेसिकली इफ यू आर बैंक करप्ट, if you're not a citizen of India, if you have defected, or if you are disqualified under any law by the parliament, ठीक है. these are the grounds of disqualification, ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ है, न्यूज़ है कि somebody was convicted in a CBI court for illegal mining case and led to the vacancy in the constitution. तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, क्रिमिनल आरपी के अंदर व्हेन यू आर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस जिसकी जिसका आपका टाइम फ्रेम है 2 ईयर या फिर उससे ज़्यादा की जेल होती है, आपको कन्विक्शन होता है, सो यू आर डिस्क्वालिफाइड एंड यू रिमेन डिस्क्वालिफाइड टिल 6 years आफ्टर यू आर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, ठीक है. दिस इज देयर. और ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है, लिली थॉमस केस में बताया गया, दिस इज एन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन. इट इज नॉट द केस कि आप उधर जाके स्टे ले सकते हो, इस पर स्टे नहीं होता है. आप बाद में जो आपको करना है वो करिए, बट इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन इज देयर. सो व्हाट हैपेंस, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years. हमारी जो लिमिट थी वो 2 ईयर थी, अब 2 ईयर से ज्यादा है, 5 ईयर, तो ये एप्लीकेबल हो गया. He is permanently disqualified. No, nobody is permanently disqualified. You are disqualified from the 6 years from the date of your release. So this statement is incorrect. Or any person who is eligible to vote can become a minister for 6 months, even not being a member of the legislative assembly. So any person who is above a particular age can, but ये तो 18 साल हो गया. So you are not even, you're not even qualified to become a member of the assembly. आप 6 महीने में कैसे बनो? Because this is not incorrect. This has not been given. There are scenarios wherein this person can be eligible, or there are scenarios where this person cannot be eligible. ठीक है, तो absolutely correct statement नहीं है ये, तो that is why this is incorrect. This is incorrect, तो आंसर is D. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉन डिटेंशन, ये एक हमारा बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी गई थी बाय यूनियन होम मिनिस्टर. 113th अमेंडमेंट बिल बोलते हैं इसे. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं था ये, दिस इज नॉट एन एक्ट, दिस इज अ बिल. दिस इज अ बिल, नॉट एन एक्ट, ठीक है. तो क्या बोल रहे थे कि इफ अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और द स्टेट मिनिस्टर ऑफ अ चीफ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर, क्या होगा, इफ यू आर अरेस्टेड इन डिटेन फॉर 30 consecutive days, 30 consecutive days अरेस्टेड इन डिटेन, यू आर नॉट सेइंग कि कन्विक्टेड, बस आपको किसी केस में अरेस्ट डिटेन कर लिया गया है, जिसमें प्रॉबेबल आप पे जो चार्ज लगाया जा रहा है वो 5 years और मोर है, तो यू विल बी रिमूव्ड, ठीक है. रिमूवल, यू विल रिमूव्ड एज ए मिनिस्टर. अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है तो उसको प्रेसिडेंट रिमूव करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम 31st डे पे. अगर कोई स्टेट मिनिस्टर है तो गवर्नर रिमूव करेगा सीएम के एडवाइस से. अगर दिल्ली का मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट करेंगे सीएम के एडवाइस से. प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई चीफ मिनिस्टर है तो ऑटोमेटिकली दे मस्ट रिजाइन इन 31st डे, अदरवाइज हम मानेंगे कि ऑटोमेटिकली दे हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है.
पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, सो दे आर अपॉइंटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। हाउस ऑफ स्पीकर को रिपोर्ट देते हैं, हाउस या फिर स्पीकर को रिपोर्ट देते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम लाए गए हैं। देर एड हॉक कमिटीज़ जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनती हैं फिर खत्म हो जाती हैं व्हेन द पर्पस इज सर्व। स्टैंडिंग कमिटीज़ जो परमानेंट कमिटीज़ हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की अगर हम बात करें, एस्टिमेट्स कमेटी की अगर हम बात करें, दीज आर PYQs ओनली। आई शो द PYQs, पहले PYQs ही देख लेते हैं। लेट्स गो एंड सी। यस, you're seeing which one of the following is the largest committee of the parliament. So you know that the estimates committee basically जिसका budgetary काम होता है, it is the largest. It has around 30 members. All of them are from the Lok Sabha only. ठीक है, so B is the answer here. अगर हम मान लीजिए parliamentary committee है and it is going to scrutinize the reports about how the delegated legislation has been made by the parliament. जो delegated legislation के हमने जो rights दिए हैं officers को, वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो कैसे इन्फोर्स हो रहे हैं, तो दैट कमिटी इज कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बी। ठीक है, एथिक्स कमेटी की बात करें, अगर लोकसभा की एथिक्स कमेटी है, इनिशियली इट वाज एड हॉक, मतलब पहले एक टेम्पररी कमेटी की तरह बनी थी, फिर इट हैज बिकम परमानेंट। सो यस, दिस इज करेक्ट। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन कंप्लेन, नो, मेंबर ऑफ लोकसभा पर कंप्लेन हो सकती है बट एनीबडी कैन कंप्लेन, है ना। द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, जो मैटर ऑलरेडी जिस पे इंक्वायरी चल रही है, केस चल रही है, इट कैन नॉट डिस्कस दैट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 1 and 3 आर करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो योर आंसर इज सी। ठीक है, कंसीडर कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अमाउंट इज अ फाइनेंशियल कमिटी। ठीक है, CAG को इसका फ्रेंड फिलोसफर गाइड माना जाता है। 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, नो दिस इज इनकरेक्ट, लोकसभा राज्यसभा दोनों का मिक्स होता है। 22 15 + 7 मेंबर्स होते हैं। स्क्रूटनाइजेस अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, yes that is what it is supposed to do. Examines the report of CAG, yes that is what it is supposed to do. The answer is 2 and 3. Now let's see. एस्टिमेट्स कमेटी क्या लार्जेस्ट कमेटी है? यस, 30 लोग हैं। यस, सिर्फ सारे लोकसभा के मेंबर्स हैं। यस, अपॉइंट लोकसभा बाय द स्पीकर, 1 ईयर का टेन्योर होता है। ओके, देन यू हैव दिस इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी। हम यहाँ पर बात करें, ये दोनों कमेटी हैं आपकी कैबिनेट कमेटीज। कैबिनेट कमेटीज और पार्लियामेंट्री कमेटीज को कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी जो है प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे। ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट कमेटीज आपके प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो आपकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है, कैबिनेट कमेटी, उसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर करते हैं। अब वो इसलिए चेयर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इसलिए चेयर कर रहे हैं राजनाथ सिंह बिकॉज ही इज अ सीजन पॉलिटिशियन। ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ही इज अ वेरी सीनियर एंड रिस्पेक्टेड फिगर, दैट इज व्हाई ही इज चेयरिंग दिस पर्टिकुलर कमेटी। ऐसा नहीं होगा कि अगली गवर्नमेंट आएगी तो भी डिफेंस मिनिस्टर चेयर करेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। और जो आपकी हाउस एलोकेशन कमेटी है, उसको होम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अदर देन दैट ऑल द मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे आपका लेट्स से पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, एनी अदर कमिटी इज चेयर्ड बाय द PM ओनली। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी PM होंगे। 8 कमिटीज में से एक है। डिफेंस, होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहते हैं। इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। इट इज डन अंडर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। सिमिलरली गोज फॉर द अपॉइंटमेंट्स कमेटी। ठीक है, अगर हम लोकल बॉडीज के बारे में बात करें, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बट जो यहाँ पर प्रॉपर करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट यू कैन स्टिल स्टडी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पाई निकाला है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नीड टू रिमेंबर, नीति आयोग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स निकाला है यहाँ पर। आपने 9 थीम पर और लोकलाइज SDGs के ऊपर आपने जो पंचायत, जो स्टेट्स हैं, उनको रेट करा है। देखिए, अचीवर कोई स्टेट नहीं है, अचीवर बेस्ट कैटेगरी है, कोई स्टेट नहीं है यहाँ पर। फ्रंट रनर में आपका गुजरात है विद द मोस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत इन दिस कैटेगरी, फ्रंट रनर में। देन यू हैव परफॉर्मर्स, 36% परफॉर्मर्स हैं। और एस्पिरेंट्स, मोस्टली एस्पिरेंट्स है 61%। तो सबसे पहले एस्पिरेंट्स है 61%, देन परफॉर्मर्स हैं 36%। फिर आपका फ्रंट रनर में गुजरात है सबसे ज़्यादा सीट्स, और अचीवर कोई नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अगर हम आगे बात करें मॉडल यूथ ग्राम सभा की, सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, देखिए मॉडल यूथ ग्राम सभा, तो ग्राम सभा से आपका आ गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, यूथ को आप टारगेट कर रहे हो, यूथ आप कुछ टारगेट कर रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, जो आपके JNV विद्यालय है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, सो यू आर टारगेटिंग थ्रू देम। एंड आप कुछ टारगेट कर रहे हो EMRS से, EMRS इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ST पीपल। सो वो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इंक्लूड हो रही है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज बीइंग इंक्लूडेड। सो मॉडल यूथ ग्राम सभा है बेसिकली, जो आपकी
यूथ पार्लियामेंट होती थी, उन्हीं के उस पे है, अवेयरनेस, जन भागीदारी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कब आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है याद करना, ये याद करना ज़रूरी है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हिंदी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हिंदी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंग्लिश का जो यूजेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा था कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, बट अभी जो हम इंडेफिनिटली यूज कर रहे हैं इंग्लिश, इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963, ठीक है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज इंडेफिनिटली विदाउट एनी टाइम लिमिट अभी हमारा चल रहा है। अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, ये इंप्लीमेंट हुआ था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बीजी खेर ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन। बीजी खेर 1955 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था, उनकी रिकमेंडेशन से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बना था, ठीक है। क्वेश्चंस ऑफिशियल लैंग्वेजेस से नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे आपकी क्लासिकल लैंग्वेज से। अभी कुछ नए चेंज हुए हैं तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं 2014-15 में। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पुरानी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो पहले दिया गया था इन्हें। तमिल इज देयर, संस्कृत इज देयर, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़ीसा, ठीक है। सो मेजर जो 4 लैंग्वेजेस है यहाँ की, जो आपकी मलयालम है, आपकी तमिल है, यहाँ पर आपकी तेलुगु है, कन्नड़ है, ये चारों प्रेजेंट है, ठीक है, पेनिनसुलर टिप की। इसके अलावा आपकी उड़िया है और संस्कृत है, ये पहले से इनको पास है क्लासिकल लैंग्वेजेस। अभी 2024 में और लैंग्वेजेस को ऐड करा गया है, मराठी इज देयर, पाली इज देयर, प्राकृत इज देयर, असमीज इज देयर, बंगाली इज देयर, ठीक है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आएगा, बंगाली, आसामी, प्राकृत, पाली एंड मराठी। सो यहाँ पर अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, इनमें से आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है सिर्फ ओडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, अब आसामी भी हो गई है, ठीक है, अब आसामी हो गई, जब क्वेश्चन आया था जब आंसर ओडिया था, नाउ दिस इज आसामी। दिस क्वेश्चन कम्स टुडे, सेम क्वेश्चन वर्बिटम, रिसेंटली लिखा हुआ है ना, तो सबसे रिसेंटली तो भाई साहब आसामी है। गुजरात, अब ये कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज, गुजराती, कन्नड़ा एंड तेलुगु, इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? तो कन्नड़ा और तेलुगु क्लासिकल लैंग्वेजेस है, so आंसर इज 2 and 3 here, प्लीज रिमेंबर दिस। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ताशकेंत में हुई, उज्बेकिस्तान में, यहाँ पर इंडिया एज अ मेंबर कंट्री, स्विट्जरलैंड, जिनीवा स्विट्जरलैंड में आपका मेन हेडक्वार्टर्स है। No need to remember anything there. Now this is something which was a problematic content given by them, but फिर मैंने इसको थोड़ा enhance करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, देखिए कुछ incorrect नहीं है, बट स्टूडेंट फ्रेंडली नॉलेज भी नहीं दे रहे हो आप, यू नीड टू क्लैरिफाई थिंग्स टू अ स्टूडेंट, ठीक है। अब यू कैन नॉट जस्ट मेंशन एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 कवर्स मैटर्स रिलेटेड टू द मनी बिल, ये लिखे ना, यस इट कवर्स मैटर्स रिलेटेड टू द मनी बिल, बट नॉट ओनली मनी बिल, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल बिल 1। फाइनेंशियल बिल 1 में क्या है, मनी बिल से क्या डिफरेंट है, कि मनी बिल का जो मैटर है वो तो हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, बट विल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट, अदर मैटर्स। अगर ये सिर्फ मनी बिल के मैटर इंक्लूड करता तो इसे मनी बिल ही बोलते, दिस विल नॉट बी कॉल्ड फाइनेंशियल बिल, बट इसे आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में फाइनेंशियल बिल दिया हुआ है, ठीक है। सो मनी बिल प्लस XYZ क्राइटेरिया, it can be introduced in Lok Sabha only, yes. It can be introduced after the recommendation of the president only, yes. Introduced after the recommendation of the president, yes, ठीक है। ऑर्डिनरी, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा ऑर्डिनरी बिल जैसे ट्रीट होता है कि ज्वाइंट सिटिंग इज अलाउड, राज्यसभा कैन अमेंड एंड रिजेक्टेड, प्रेसिडेंट कैन वीटो इट, नो प्रॉब्लम देयर। फाइनेंशियल बिल इज अ मनी इज रिलेटेड टू मनी बिल इन दीज टू रिगार्ड्स, अदर देन दैट इट इज अ नॉर्मल बिल। अगर हम फाइनेंशियल बिल 2 की बात करें, 117 क्लॉज 3 के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो फाइनेंशियल बिल 2 मींस कि मनी बिल के अंदर जो आर्टिकल 110 का जो है, इनमें से कोई भी मैटर हमने इंक्लूड नहीं करा है, और ये मैटर हमने इंक्लूड करा है। सो इट इज ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी बिल, बट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड एट द कंसिडरेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड रिक्वायर्स प्रायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। यस, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन चाहिए, बट इंट्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए भाई, एट द कंसिडरेशन स्टेज चाहिए। ये कौन क्लैरिफाई करेगा? यू विल हैव टू टेल द स्टूडेंट्स हियर, ठीक है, यू विल हैव टू टेल द स्टूडेंट्स दिस वर्बेटिम, इफ यू सी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से, ये गलत नहीं है, बट एक्सप्लेन तो करोगे आप स्टूडेंट को, this is there। Now this particular whatever is given here, finance bill और money bill, financial bill और money bill में finance bill में आप distinguish कर लीजिएगा, don't confuse between finance bill and financial bill।
फाइनेंस बिल इज बेसिकली द जो बजट में पास होता है, इट इज अ मनी बिल ओनली एंड इट इज सिमिलर टू मनी बिल. लेट्स सी द क्वेश्चन. ये PYQ है इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है. विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड द मनी बिल, व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. ठीक है. ठीक है, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. क्या मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है? डज इट हैव द अथॉरिटी? हाँ. Second, when the Lok Sabha transfers money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. Yes, because finance bill, यहाँ पर फाइनेंशियल बिल मत सोचिए. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल की बात नहीं हो रही है, फाइनेंस बिल की बात हो रही है. सो यस, द लोकसभा ट्रांसमिट्स इट टू द राज्यसभा. दे कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट इट. In case of disagreement, joint sitting can be there. It becomes necessary joint sitting. No, it should not be because आपकी इसमें joint sitting होती नहीं है मनी बिल में. सो द आंसर इज ओनली वन. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब जॉइंट सिटिंग से मुझे याद आया कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द जॉइंट सिटिंग. सी, लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक होगा तो जॉइंट सिटिंग हम करेंगे. जॉइंट सिटिंग किन सिनेरियोज में हम कर सकते हैं? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में कर सकते हैं, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मनी बिल में कर सकते हैं, नो. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कर सकते हैं, नो. ये याद रखिएगा. क्या हम फाइनेंशियल बिल 1 में कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग? यस. फाइनेंशियल बिल 2 में कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग? यस. तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली वन. कम हेयर. मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, बाय द राज्यसभा. अगर मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा, व्हाट हैपेंस? तो लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्टेड एंड प्रोसीड अहेड. ठीक है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है लोकसभा का मनी बिल के पर्सपेक्टिव में. इफ जॉइंट सिटिंग इज हैपनिंग, हाउ विल यू पास? देखिए अगेन क्वेश्चन ऑन जॉइंट सिटिंग. बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग. दैट इज व्हाई द लोकसभा ओवर पावर्स द राज्यसभा इन अ जॉइंट सीटिंग. ठीक है. ये लैप्सेस के बारे में यहाँ पर जरूरत नहीं है. प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पढ़ लेते हैं बिकॉज आगे हम वी आर गोइंग टू कवर एन आर्टिकल ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल. अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड. अगर इलेक्टेड नहीं हो, सिर्फ नॉमिनेटेड हो, तो आपका बिल प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा. ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको क्या है. फर्स्ट टाइम अभी पास हुआ है हिस्ट्री में प्राइवेट मेंबर बिल. ये भी गलत है, मैं बताता हूँ. देखिए बोथ ऑफ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. अगर अब यहाँ पर हम आए प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर. ठीक है, एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर, वो इट डज नॉट मैटर कि वो इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड है. इलेक्टेड भी हो सकता है, नॉमिनेटेड भी हो सकता है. सिचुएशन ये है कि बस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए. अगर वो बिल प्रोड्यूस करेगा तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे. उन्हें 1 मंथ नोटिस देना पड़ता है. स्पीकर एक्सेप्ट करता है, स्पीकर एक्सेप्ट नहीं करता है, वो स्पीकर की प्रोरोगेटिव है. ओनली 14 पास हो चुके हैं. ठीक है, 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हो चुके हैं. फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है. लास्ट पास हुआ था 1970 में, बट काफी टाइम हो गया है. यस, जो मुस्लिम वक्फ बिल था 1952 का, वो था लास्ट आपका प्राइवेट मेंबर बिल. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. अडजर्नमेंट साइंड है बेसिकली मीन्स हम अडजर्न कर रहे हैं, हम सेशन एंड कर रहे हैं, सॉरी मीटिंग एंड कर रहे हैं. कोई टाइम हम नहीं बता रहे हैं बेसिकली फिर से मिलने का. ठीक है, वी आर नॉट स्पेसिफाइंग अ टाइम विदाउट असाइनिंग अ डे फॉर फर्दर मीटिंग. वी आर नॉट स्पेसिफाइंग टाइम व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट. ठीक है. अडजर्नमेंट एंड डाई के बाद द प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस. ठीक है, प्लीज रिमेंबर the speaker can only adjourn the house. Adjournment can be with a specific time limit or without it. Only the president can prorogue the house. ठीक है. ऑल द बिल्स अगर एडजर्नमेंट हो रहा है पेंडिंग इन द सेम हाउस रिमेन अनअफेक्टेड. प्रोरोगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं. ऑल द बिल्स पेंडिंग इन द हाउस रिमेन्स अनअफेक्टेड. नोटिस को आपको वापस लाना पड़ता है. ये वापस PYQ दिया हुआ है दैट द पार्लियामेंट इज सपोज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. देर आर नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज सपोज टू मीट. जीरो और क्या होता है? क्वेश्चन आर पहले आपका स्टार्ट होता है. फर्स्ट आवर ऑफ योर पार्लियामेंट्री सेशन इज क्वेश्चन आर. इसके जस्ट बाद और जो मेन बिजनेस चालू होना है उससे पहले क्वेश्चन आर, और मेन बिजनेस से जस्ट पहले जो समय रहता है उसको हम 0 आवर बोलते हैं. इट इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस, इट इज़ नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड. 12 नून, 12 नून. ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, 12 नून इज 0000, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आर, सॉरी 0 आवर. Question hour, first hour of every parliamentary sitting is a question hour. Three kind of questions are there. Start question, तो मैंने पहले नोटिस दिया था आपको, आई लास्ट दिस क्वेश्चन, सो आई आस्क इट टू द स्पेसिफिक पर्सन, और वो रिप्लाई करेंगे तो आई कैन आस्क अ सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री कैन फॉलो. अनस्टार्ड है तो बेसिकली रिटर्न आंसर मिलेगा, तो सप्लीमेंट्री कैन नॉट फॉलो. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है तो बेसिकली नोटिस ऑफ लेस देन 10 days इज गिवन, आंसर इज गिवन ओरली. नाउ दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड. नेवा, नेवा रिसेंटली सीन इन न्यूज़. मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का ये है आपका सॉफ्टवेयर. बेसिकली आपको पेपरलेस करना है ना,
पेपरलेस करना है, डिजिटल इंडिया, विकसित भारत। तो बेसिकली आप लोग जो प्रोसीडिंग्स हैं आपकी लेजिस्लेटिव हाउसेस की, उसको आप पेपरलेस करना चाह रहे हो, स्मूथ करना चाह रहे हो, तो एनआईसी क्लाउड, ठीक है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर मेघराज का आप यूज़ कर रहे हो, चेयर ऑफ द हाउस विल यूज इट टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेशन। डिजिटाइज कर रहे हो आप, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। Thank you so much for joining. I hope you got some considerable output from it. We'll be doing this type of activities for all the topics of the PT65. This was just one thing that I've shown it to you here. ठीक है, PT plus PYQs. You can download this particular PDF if you want from the Telegram group. I will give the link in the first comment there. ठीक है ना? Thank you so much. Bye bye. Take care. All the best. Please subscribe to the channel. This is a new one, so your subscription will mean a lot. Bye bye.